हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यशवंत तिवारी, आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट। मेड डिवाइस कम्युनिटी मेड डिवाइस कम्युनिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाते हैं, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। और इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने एक ऐसी ही शख्सियत को बुलाया है जिसने इंडस्ट्री में बहुत लंबा समय दिया है। वो शख्सियत आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे साथ है। मिलिए आज के गेस्ट परिमल भटनागर जी से। वेलकम सर। Thank you, Ashwant, and wonderful to be talking to you this time in a very different forum. You and I have worked together, we are good friends, but great to be here and talking to you. It's a pleasure to have you over here, and at the same time it is a big pressure too for the new role. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉक्स। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने बचपन में आप कैसे थे, आपका बचपना कैसा था आपके। Well, I was born in 69 in a defense atmosphere. So my father was in Air Force. So गाड़ी चालू पहले होती है कि I was born in Belgaum, जो अब कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है. But I was born at the soil, Belgaum in Karnataka. From there, we had different postings, as it is obvious with the defense officer. So we went to Allahabad, we were posted to Bangalore, erstwhile Madras, uh, erstwhile Calcutta, then back to Madras, and then the last posting was in Nagpur, which is my hometown. Oh, great. So my father retired in 92, and obviously, since he was in Air Force, मेरी पढ़ाई पूरी केंद्रीय विद्यालय में हुई. So I was throughout educated in the central schools, which gave me a very different perspective for how things are. And also because हम लोग अलग-अलग जगह थे, तो अलग किस्म के दोस्त, अलग किस्म के classmates. So that made a very different, made big difference for me. After my 12th, I did my graduation from SFS in Nagpur as an hosteler. वो और एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ ज़िंदगी में पहली बार माता-पिता की छत्रछाया से निकल रहा था और सीधा मैं हॉस्टल में आया, तो बिग बैड वर्ल्ड ऑफ हॉस्टल. वो एंड I did my graduation there, BSc, and I also happened to be the second batch of biochemistry, students of that college. Oh, I never knew that this biochemistry would take me till today. So I'm still related to the subject, as you know. So that is what my schooling happened to be. My mother is an housewife. She took care of the home, which was difficult with sons that she had. My brother and me, not very easy to raise. Correct. So my brother is 6 years elder to me, Okay. and he retired a few years back from his private sector jobs, Okay. and he settled in Chennai. So Fantastic. he never came to South North India. So I call him a South Indian. He calls me a North Indian. True. So that's how thing goes. So my father expired a couple of years back, and after that, so uh, my mother continues to stay uh, in Nagpur. Okay. She's a fiercely independent lady, and as a typical Libran would be. So she stays there, and I keep visiting Nagpur. My career started in '92, and like my graduation, even that fate had something very different for me. I was doing a tidbit job somewhere, and then suddenly one of my friends said that there's a company called Miles India, and you should be Yeah. going and visiting. And I visited that in '92 in Baroda, and the personality of IVD. I met Mr. So you started your career in 1992, long back, Yeah. maybe around 33, 34 years from now. Yeah. Yeah. So '92, I started my IVD career, and Okay. I met the personality of IVD, Mr. Jotwani, and he interviewed me and offered me Indore at that time. Oh, Indore headquarter, correct. Yeah, and been there, done that, because I was posted in a lot of places. Indore, Jabalpur, Nagpur, Ahmedabad, Mumbai, Ernakulam in between, and now in Navsari. So, it's been pretty mobile, and just I carry probably that culture from my dad, of getting posted every. तो इन शॉर्ट पूरा भारत भ्रमण हो चुका है। Oh, yes, Vikul, absolutely. ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, बचपन में एक चीज़ और जानना चाहता था
अपार्ट फ्रॉम रूटीन एकेडमिक्स पढ़ाई के अलावा आपको किसी स्पोर्ट्स में किसी चीज़ में इंटरेस्ट था? Actually, no. I was very, you'll be surprised that I was a pretty introvert person till my graduation, or rather, I would say post graduation. It was only when I did my MBA that, I opened out, I would say, in a way. हमारे पास बचपन की आपकी एक तस्वीर है, आपको दिखाना चाहिए। जो आप मैंने सुना है कि आप घुड़सवारी करते थे, ये देखिए। Oh, yeah. That was my first birthday. ओके, So that was a photograph of my first birthday. Yeah. So that's how things were, and I changed. I think I changed after MBA. And then of course coming to sales line, where it is absolutely required that you be outgoing and communication being has to be strong. करेक्ट। And that's how I probably my personality changed. ओके, तो माइल्स इंडिया के बाद आज तक का जो सफ़र है आपका, फिलहाल आप वेक्टर में कार्यरत है इन कैपेसिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो उस Yeah. बारे में थोड़ी इस जर्नी के बारे में बताइए, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि वो क्या होता है सेल्स जर्नी एंड मार्केटिंग ऑफ कोर्स। So like I said, I kept myself mobile, ठीक है। वन ऑफ द डिफरेंट थिंग्स दैट देखिए, दो तरीके से चीज़ें होती हैं जो सेल्स लाइन में और प्राइवेट सेक्टर में। वन इज़ दैट पर्सन कंटिन्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अनदर व्यू ऑल्सो, और अनदर रूट ऑल्सो, आई वुड से। एंड I took the other route. No, I had been to quite a few companies, but then it helped me to understand two, three things. One is that I was posted in different areas, so it gave me a lot of output, outlook changes on that. And the second thing is that it gives exposure to different cultures. ट्रू, You know, so those are very different companies. So लाइक well, if you talk of my first company, at that time, Mice India was the leading company in the world, right? So yeah, so I got initiated with that, right? या There is a ego attached to working with the biggest company, isn't it? So I worked with them. So for example, a product which was selling at a lakh rupee, 1.5 lakh rupee, we used to sell at 2.5 lakh rupees. ओह यस, So we had that pride with us. We sell a product at this Imported price, imported product, and we sell at this price. That was there. My first change was straight away to an Indian company, very different kind of a product line that was in J Mitra. ओके, Right. So from an hardware, I came straight away to Rapids, selling Rapids, which is a very different market, a very different way of व्हाट डू दे मेक जे मित्रा? so J Mitra, it's one of the I would say best a company into R&D. The company which has the best product for the HIV testing, the rapid testing, they still happen to be the best in the business. ओके, The fact that even the top end customers or doctors will say that if there is a discrepancy in a sample, test it with the J Mitra product and you will get a proper result. That's the level of company that they have. गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ Yes, and they kept innovating. They keep innovating that product, to keep in because ours is a very different line, a changing line. They keep in pace with this what is happening. ओके, So when it comes to serology, when it comes to blood banking, when it comes to rapid products, J Mitra happens to be the top. Yeah. ओके, तो यू वर्कड इन माइल्स इंडिया, जे मित्रा, देयर आफ्टर अदर एमएनसी और इंडियन? Yeah. So what happened was I was in J Mitra. I was in two places. I was in Nagpur, and then I was promoted and sent to handle the state of Gujarat. वाओ, The earthquake happened on 26th Jan, and on 4th February, I was offered this. So not many people thought that I would take up this opportunity, but then I took it up. Came to shifted to Ahmedabad. Very, very eventful time because the earthquake happened, and then when during the tenure, the Gudra happened, and the incident, and all those things happened, and I had never seen disturbance and rise in my life, having been in a defense atmosphere. We have never seen that करेक्ट, करेक्ट, in the peace area for sure. So that was interesting. We had very nice tenure that I had there, and then I had an opportunity to Mumbai. What had happened was, ever since I started my career, I was very clear about it that I have to go to the head office, else I will be stuck. Trishanku nahi banna hai. तो बिल्कुल हाँ, You have to reach somewhere else. You are stuck. So it was only one way. It was either Mumbai or Delhi. So I took up the Mumbai route, and I got an opportunity and moved to Mumbai. नेशनल कैपिटल की वजह आपने कमर्शियल कैपिटल ऑफ द कंट्री चुना। Yeah, correct. So
And the place which I always aspired, always, I was in awe of Mumbai for a long time. That how will I survive in this big bad world? बिल्कुल, बिल्कुल। But then opportunity वहीं है. तो So 2003 में आप मुंबई आ गए। yes, 2003 I moved to Mumbai. आए थे तो आप शादीशुदा थे या मुंबई आके शादी किया? Now, no, my daughter was already in the first standard. ओह! ओके, 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 ओके। So So with family you were traveling from Indore to Ahmedabad and back to Yep, Mumbai. yeah. Okay. When I got married, I was in Jabalpur. So Oh, great. yeah. So then I got a first break. I would say in a very different break. I would say when I got a chance as a sales manager in Roche. Oh, great. So Roche had just started on 1st of January 2005. Well, so that was the time when I was taken to handle Maharashtra. Correct. And it was very very defining moment for me in my life because it taught me what is sales to key accounts and bigger customer all about. At that time we were up to smaller customers and a typical salesperson who would been तो ये डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है कि ये नॉर्मल लेबोरेटरी है या फिर की अकाउंट्स क्यों कहा जाता है कस्टमर्स को? रीजन बिहाइंड इट। key accounts means as the name itself which suggests these are accounts which are larger in size. ठीक है, बड़े होते हैं ये रेफरेंस और बड़े होते हैं या वर्कलोड के हिसाब से नंबर क्या टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से रेगुलर नहीं करते हैं, स्पेशलाइज टेस्ट करते हैं. हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, लैब भी हो सकते हैं. जब हॉस्पिटल बोलेंगे तो हॉस्पिटल के लैब की बात कर रहे हैं हम लोग बिकॉज वी आर कंसर्न विद द आईवीडी करली. करेक्ट। सो नेचुरल है कि ये टाइप के कस्टमर्स ज़्यादा करके बड़ी सिटीज़ में दिखेंगे. राइट, यू विल फाइंड लेस ऑफ देम इन जबलपुर फॉर एग्जांपल और इन नागपुर फॉर एग्जांपल. या You will find more of them in मेट्रो सिटीज a metro city for और मेट्रो भी। yeah, and they are generally they would like certain kind of brands. They Okay. are linked to that. That's how the game goes. ओके। And very obvious that when you are working with the top company in the world, they will have a very big say in these key accounts. ओके। So फर्क ये हुआ रोश में आने के बाद कि taught me to that inhibition about going to a larger place, going to a Leelavati, going to a Mumbai hospital, going to that came out of me. And then I realized that these people are much better than even the others, right? So they're good people. So ऐसा नहीं कि उनके सर में सिंग लगे हैं. They're nice guys. So Roche taught me to what's big business all about. Think big. करेक्ट, करेक्ट। So I consider that as a defining moment for me, apart from the Miles India start of my career, because these two companies shaped my thinking and my philosophy in a big way. अच्छा, तो रोश के बाद फिर आप सीधा वेक्टर में आ गए एज ए वाइस प्रेसिडेंट। Yeah, I was in few companies. Then I joined Vector, जहाँ पे बिल्कुल again बहुत अलग culture है, बहुत अलग reason है. In fact, I joined my December 2nd tenure there, and ग्रेट। the only reason is that they are very close to the management. They are I really like them, and In way two also. yeah, I Otherwise second inning wouldn't have been possible. hope so. So the yes, but the fact remains that here it is more than just business. It's just more than an assignment for me. Okay. My involvement and my association with them goes much more than that. Okay. So it's more of my commitment here. Okay. So you have rejoined Vector in capacity of vice president. तो एज ए वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग जब होता है, हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग? Okay. So when you see, I'll differentiate that in two companies, two types of companies. When you talk of companies, an Indian company, ज़्यादा करके the demarcation is fudged. It's not really a clear demarcation. ओके। Very rarely, in fact, in a very larger company or an MNC, you will find a sales and marketing head. You generally find a sales head and a marketing head, ओके। right, reporting to the top boss. Uh. Here, the demarcation is little fudged, right? So sales और marketing को थोड़ा मिला दिया जाता है. Otherwise, when you see, it's a very specialized line. Marketing is all about how do you take your brand value more. How do you do anything which is back office. The sales does the front office job. The actual hardcore number driving, right? Or anything which is beyond numbers comes this side. However, in companies like us, it is a little fudge where the sales head does both the jobs. Okay. So, but it is more driven towards sales. My work is more towards number driving,
than the marketing side. ओके Okay. ग्रेट रेवेन्यू जनरेशन होता है Revenue gen सबसे important, all about that. यस अच्छा मैं एक ये जानना चाहता था हमारे दर्शकों के लिए कि जब आप किसी को एज ए रीजनल मैनेजर या एज ए जोनल मैनेजर सिलेक्ट करते हो तो व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज यू लुक फॉर इन द कैंडिडेट Okay. उसमें क्या क्वालिटी ढूंढते हैं बेसिक वैल्यू क्या होनी चाहिए कोर वैल्यू होनी चाहिए या कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए या फिर एग्रेशन क्या होना चाहिए क्या ढूंढते क्या है उसमें क्या क्या चीजें ढूंढते हैं Well, कुछ क्वालिटीज हैं जो बहुत ऑब्वियस हैं, राइट? पर्सन हैज टू बी गुड इन कम्युनिकेशन, ओके person has to be good in his looks. He has to be presentable for sure. To like they say, in the interview, it's the first 90 seconds we decide whether you're going to be taken or not taken, and that holds good even in when you take a sales manager or zonal manager or anything. So the looks has to be good. He has to be presentable. If a person is coming for an interview, he has to be prepared, right? Right from the look onwards to the subject, right? ओके So, say for example, a person is coming and he is not in a tie. It gives the first impression. यस A person is not properly prepared. This is a serious business. Right? To interview is a serious business. The second thing which I would say is that communication has to be strong. He has to express himself. यस Right? Sales is all about expressing. You may have the knowledge. How well do you express? True. That's where the game is. I do look at that a lot. When I talk to the person about his hobbies, what we should generally see is that how good is this person in hobbies like sports. ओके And when you see sports, you should see how good is he in sports which is non-individual sports, ओके right? करेक्ट So how good does he play? Does he play teamwork यस sports? And that is certain things which interviewers see or I see for sure, right? ओके He plays table tennis, it's a separate ball game. He plays football, so it's very separate ball game. That is one of the things. The other thing is, when certain persons talks about hobbies, it's just a matter of prodding a little bit to understand how deep that hobby really is. Yeah. To understand this, I generally go very low on a person's knowledge because I believe that can be imparted. But there are certain things inbuilt which cannot be, and Correct. that's what I look at when when I'm interviewing a person. Uh, Integrity is absolutely has to be 100% for me. how to Uh, how to validate that integrity Well, see, when you're talking about a person at a zonal manager level, Yeah. okay, he's not a newbie. Okay, he's a well known in the industry. Yeah. So there are various ways to find out about a person. I also try and do a homework. See, what happens is by the time now I might say that persons who are 10 years, 12 years in this industry, I may not know them. But few years down the line, I knew everybody. So it was not a difficult task to know that. And I hold a lot of importance and I give a lot of marks on integrity because this a sales job is a very responsible job in the sense that you have got a lot of power which you can misuse. बिल्कुल Yeah. हाँ So you are remote, right? My head office is in Navsari. Someone is posted in Chennai. I don't know what he's doing on a daily basis. सही बात है His integrity has to be 100%. सही And that is absolutely, it comes top of the line for me. सही बात है Right? यू कैन नॉट व्यू हिम ऑन डे टू डे बेसिस बट आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म होता है जिससे आप मॉनिटर करते हैं कि वो क्या कर रहा है ऑन डे टू डे बेसिस और कर रहा है तो कैसे मॉनिटर आप करते हैं या नहीं कर रहा है तो कैसे पता लगाते हैं एक्चुअली इसको कहते हैं ना, जैसे चावल को परखना है तो एक मुट्ठी में लेके हो जाता है, ओके right? आपको पूरा देखना नहीं पड़ता है बोरी को. सो हाँ इट इज जस्ट अबाउट चेकिंग फ्यू इंस्टेंसेस और डील्स where you come to know okay, how this person is. It does not really require you to go very deep in, ओके right? And I think it comes out in a couple of months, even if it has missed out, during the interview. बिल्कुल हाँ So, बिकॉज yeah. interview performance is different and actual field performance is different these are two different things तो उसको मॉनिटर करने के मैकेनिज्म्स भी आपके पास अलग अलग है Yeah, and I have seen it in a few of my, I would not name them, few of the very good companies that I work with, that when it comes to this particular point, they do not give second chance. ओके And that's how it should be as per me. Integrity cannot be even 99. ओके जी हाँ परिमल जी आपने मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया हुआ है इंडियन कंपनीज में काम किया हुआ है मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताने के लिए जानना चाहता हूँ कि
ऐसी कौन सी खूबियाँ होती है मल्टीनेशनल कंपनीज में जो इंडियन कंपनीज को सीखना चाहिए? और मैं दोनों तरफ है एक्चुअली, दोनों तरफ है, ओके। यानी एक दूसरे से सीखना चाहिए। वही सीखना चाहिए। ओके, कैसे? दोनों तरफ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ नहीं बोलूँगा बट शॉर्टफॉल्स बोल सकते हैं। अ, अब एमएनसी की बात करेंगे ना तो उनमें कुछ चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम उनका बात करते हैं एसओपीज़ की, जब उनकी बात करते हैं काम करने के तरीके की, वो एकदम फिक्स्ड रहता है ओके, और अपने तरीके से काम कर रहे हैं, ओके। एमएनसी आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छा कर देता है बिकॉज़ आप सिर्फ़ वहीं पे काम कर रहे हैं। हाँ, आप जब सेल्स में हैं तो आप मार्केटिंग में नहीं जा रहे, बिल्कुल। ना आप कहीं और जा रहे। तो दैट इज़ द सेकंड वेरी गुड पॉइंट अबाउट एमएनसी। दूसरी बात ये है कि एमएनसी सुपर स्पेशलाइज़्ड जॉब करवाती है और इंडियन कंपनीज सारा कुछ करवा लेती है। हाँ, वो अपने मल्टी में टास्किंग। काम कराती हैं कि भाई आपको आपका काम ये है तो आप यही करेंगे, ओके, इधर नहीं जाएँगे। सो दे आर वेरी फिक्स्ड बॉक्सेस है, आप उधर ही काम कर रहे हैं, आप इंटर ये कम होता है। ओके, द लेटेस्ट मैनेजमेंट सेज दैट अभी चेंज हो रहा है बट देन एट द मोमेंट तो ऐसा है। दिस अदर थिंग इज़ दैट एमएनसीज़ में आपका विज़न जब आप कहते हैं, वो ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और वो जब विज़न बात करते हैं तो वो 10 साल आगे की बात करते हैं। मैं इस समय आईबीडी को के कंसर्न में बात करता हूँ। आई विल नॉट टॉक अबाउट द अदर लाइन। तो जब आप इसकी बात करते हैं तो उनका विज़न हाँ, मतलब हमको कहाँ पहुँचना है और हमको ओके, कैसे पहुँचना है, उनका बहुत क्लियर रहता है। द कैलेंडर इज़ प्रिपेयर्ड, दे वेरी वेल नो कि भई हम लोग को यहाँ से 8 साल बाद क्या करना है, क्या प्रोडक्ट्स आएगा, हमको क्या करना है, दे आर वेरी क्लियर। ओके। दूसरी बात वो बहुत अच्छी और होती है। ये इन सब चीज़ों में इंडियन कंपनीज थोड़ा पीछे है। आई वुड से ये लोग स्ट्रॉन्गर हैं रादर ओके, कंपैरेटिव है, ओके। आई हैव रेयरली सीन एन इंडियन कंपनी जो 10 साल आगे का उनको क्लैरिटी है कि हम लोग क्या करेंगे। ओके, सो बट जब आप यहाँ पे बात करते हैं तो इट इज़ इन्हीं चीज़ों का अपोज़िट देखिए, राइट? यहाँ पे यू आर एक्सपोज़्ड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वेरी अर्ली इन योर करियर, ओह यस, राइट? अब इसको आप कैसे भी देख सकते हैं। मैं इसको देखता हूँ कि बहुत बड़ा बेनिफिट है मेरे को बिकॉज़ आई गेट एक्सपोज़र, राइट? ओके, यस, अब एज़ अ ट्रैवलर बोलते हैं कि ही इज़ अ वेल ट्रैवल्ड मैन। या व्हाई डू वी से दैट? जी हाँ, बिकॉज़ ये कई जगह घूम के आया है। इसको इस घाट-घाट का पानी पिया हुआ घाट-घाट बोलते हैं। के पानी पिया हो, इसका आउटलुक ज़्यादा है, राइट? जी हाँ, इन द सेम वे ना जब आप इंडियन कंपनीज़ की बातें करती हैं, द फैक्ट दैट हम लोग एक्सपोज़्ड हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनका वर्किंग का क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, मेरे ख्याल से इट हेल्प्स, ओके, राइट? टू यस, यस, अंडरस्टैंड एंड टू एग्ज़ीक्यूट आवर वर्क। दैट इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस आई वुड से इन दिस थिंग। इन केस आपके पास अच्छा मैनेजर है एंड दिस हैज़ बीन वेरी वेल laid down by the famous चाइनीज़ बिज़नेसमैन जैक मा। हाँ, जब उसने कहा था कि इस ऐसे कंपनी में आपको अच्छा बॉस मिल जाता है, तो आप बहुत सीखते हैं, बिल्कुल, राइट? सो यू लर्न सो मेनी थिंग्स या व्हिच इज़ मल्टीफैसेटेड एंड व्हिच टेक्स यू अप एज़ अ पर्सन, राइट? वो बहुत बड़ी बात एक इंडियन कंपनी सिखाता है। द सेकंड थिंग इंडियन एक कंपनी सिखा देता है इज़ सी इट मेक्स यू अ बिज़नेसमैन वेरी क्विकली। देखिए, या आप एमएनसी में रहेंगे, अगर मैं एक रीजनल मैनेजर हूँ, मेरा काम सिर्फ़ टॉप लाइन देना है, मेरे को सिर्फ़ सेल्स देना है, उससे प्रॉफ़िट आ रहा है, नहीं आ रहा है, मेरा कोई कंसर्न नहीं है, बिल्कुल, राइट? जब जब आप इंडियन कंपनी में रहते हैं, तो एक बात हो जाती है कि बहुत जल्दी आप सेल्स से बिज़नेस में आ जाते हैं, राइट? यस। सो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट भाई कहाँ पे लॉस होता है, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, हाउ टू मेक अ प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस और सेल्स रादर। तो इन शॉर्ट इसको ऐसे कह सकते हैं क्या कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला आदमी अगर लंबे पीरियड तक काम करे तो वो बहुत अच्छा प्रोफेशनल जॉब करने वाला प्रोफेशनल बन जाएगा और इंडियन कंपनी में काम करने वाला आदमी यदि लंबे समय तक काम करने जाए तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। श्योर, कह एब्सोल्युटली, सकते हैं? एब्सोल्युटली, ओके, बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम वही ओके, कहने की कोशिश कर रहा था, बात सही है। सो इट्स लाइक अब मैं बहुत रफ कंपैरिज़न आर्मी का दूँ, तो अगर आदमी आर्टिलरी में है, तो प्रोबेबली राइट टिल दैट टाइम ही इज़ अ ब्रिगेडियर, ही इज़ एन आर्टिलरी पर्सन ओनली, बिल्कुल, देन ओनली देन ही गेट्स अ ब्रिगेड। बिल्कुल, तब तक वो सिर्फ़ वो कर रहा है, राइट? बिल्कुल, सो बट देन इंडियन कंपनीज़ में इट्स नॉट सो, करेक्ट, करेक्ट, यू गेट एक्सपोज़्ड वेरी क्विकली टू एवरीथिंग। जी हाँ। तो आपको वैसा डेवलपमेंट ज़्यादा है। अगर इसको कपल करते हैं हम लोग एक बेटर विज़न, बेटर प्लानिंग में, आई थिंक यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। व्हाट अबाउट योर वाइफ? इज शी ए होममेकर और शी also is a working? So, my wife, somewhere in between, I would say, because when she got married, she was working. आपके मैरिज का भी फोटो है हमारे पास। हमारी रिसर्च टीम बहुत स्ट्रांग है, ये देखिए। That photograph I call as Beauty and the Beast. यस, यस।
ब्यूटी एंड द बीस्ट, हु इज द बीस्ट? ओके, नहीं आप भी उतने ही हैंडसम है लोग। So she's basically from a small town in Muradabad, but Muradabad, city of metals, brass, right? yes, the city of brass and city. My general knowledge is also good, no? Yeah, yeah. And I can add to your general knowledge by saying that the city of the waters, Oh yeah. so, it's known for two things. So, so that's so she started from there. Okay. And, in our clan, we have a good or unique thing that all maximum females are Librans. They're all October borns, and all Librans are very outgoing. So my mother, my cousin, my bhabhi, my wife. So we are all Librans. So she's a very outgoing lady, which helps me because she manages the house totally. Okay. Specifically now that I stay more or less more in Navsari, and she manages the house in Mumbai. Okay. So it works very well for me. You are in sales and marketing. You have been traveling a lot right Yeah. from beginning of your career. So how do you manage your professional life with family life? So Balance कैसे बनाते हैं दोनों के बीच? as I just said, some time back, it helps me big time that my wife is a person who can handle the whole thing independently. Managing a house is not easy. There are so many things which happens, and she practically handles, and that helps me a huge way. Point number one is that point number two is you know see, when you want to have a touring job, or when you have rather a sales job, touring it goes hand in hand. You Yeah. can't deny it, right? So if you have to take it, if you want to make it a career, if you want to really do well, Yeah. even at this level, you have to tour. Else you lose touch with the field, and the moment you lose touch with the field, your market value goes down. So that is imperative that we do that. बिल्कुल सही बात है। And fortunately, Navsari and Mumbai is not too far. It's about 2.5 hours by train. So it helps me that way. So I can like at this moment we are in Mumbai, so बिल्कुल। it helps me. जैसा कि आपने कहा कि टूरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर काइंड ऑफ योर काइंड ऑफ प्रोफेशन, तो इस टूरिंग में इफ यू डोंट टूर आप यू लूज द टच विद द फील्ड। तो फील्ड से आप क्या कहना चाहते हैं विद द कस्टमर, विद द डिस्ट्रीब्यूटर, विद द कलीग्स, विद कॉम्पिटिटर्स? कैसा होता है ना यशवंत, I'll tell you, like they say, learning is a never ending process, right? If anybody is sitting at my level, or any of the company says that I know everything about IVD as regards market is concerned, the product is concerned, it's an incorrect statement. It's an ocean. We still learn. वेरी ट्रू, हम I still स्टूडेंट है आज भी। yeah, I still learn. यस। And I tour minimum 12 days a month still. I make it a point to take a lot of feedback of what's happening on the field rather than selling a product. My area manager and zonal manager are much better salesperson than me. Agreed. Obviously, because they are doing it day in and day out. I go there to take a market feedback, to understand what's happening in the market, to understand what the customers are thinking, Okay, so yes. that we present them the products as per their requirements. Right? So I spend more of my time doing that today. And if you don't do that, your strategies are affected at the head office, and the strategies are not right. Simple as the sales are affected. बिल्कुल। So it is the game here is to be one step ahead. right? True. So how do you stay one step ahead? The way only you do it is go on the field, either personally or your confidants who go get you the feedback. This is what is happening on the field as regards the competitors are concerned, their strategies are concerned, the changes in the field are concerned, the purchase pattern of the customers are concerned, right? बिल्कुल How government policies are affected. बिल्कुल So all those things, ये सब बातें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि एज ए फीडबैक जो हम लोग हेड ऑफिस में कैरी करें और उसके ऊपर स्ट्रैटेजीज बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चूंकि आपने इस इंडस्ट्री में, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में 32-35 वर्ष गुजार दी है, आप इंडस्ट्री को 32 साल पहले की जो इंडस्ट्री थी और आज की जो इंडस्ट्री है, इसमें जो चेंज हुआ है, इसको कैसे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके हिसाब से? सो यशवंत, इट्स लाइक हमारे जो जो पीढ़ी है हम लोग ने जैसे ट्रांजिस्टर देखा, रेडियो देखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी, राइट, कलर टीवी देखी, अब हम लोग मोबाइल्स में आ गए हैं। वी हैव सीन एवरीथिंग, यस यस यस। एंड वी हैव बीन लकी उस तरीके से कि जब इंडस्ट्री की भी बात करें तो हमने भी वो पूरा देख लिया है। बिल्कुल इंडस्ट्री जो बिल्कुल नेसेंट स्टेज में थी, ओके, 92 इट वाज नथिंग। आई थिंक मेरे ख्याल से
6 कंपनीज़ थी डायग्नोस्टिक्स में। ओके। अब तो गिनती नहीं है हाँ, कितनी है। तो अनगिनत है। राइट तो हमने सब देख लिया है। वी हैव सीन जहाँ पे वो समय बहुत अलग था। ओके एंड मेरी पहली कंपनी ऐसी थी जहाँ पे बायोकेमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट था। बिल्कुल। अब होता ये है कि जब जब पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग दे आर वेरी गुड इन इन यू नो द पैथोलॉजी, राइट, Yes, वेरी गुड इन माइक्रोस्कोप। yes. दे रिक्वायर लॉट ऑफ इनपुट्स फॉर बायोकेमिस्ट्री और वो मेरे को हेल्प किया था Because of लोग जब your qualification. क्वालिफिकेशन एंड वो लोग चाहते थे कि हमको इसमें इनपुट दे इस सब्जेक्ट पे। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड अगेन मेरा फॉर्चून था कि माइल्स इंडिया से मैंने चालू किया था जहाँ की ट्रेनिंग इज़ लेजेंडरी ट्रेनिंग वी हैड। ओके वी यूज्ड टू हैव 21 डेज ट्रेनिंग जो आज के दिन बहुत बड़ी माना जाता है। तो हमें 21 दिन की ट्रेनिंग मिली थी। तो उस ग्रेट। प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आना और उसको लेके फील्ड में जाना, राइट? बिल्कुल, तो दैट हेल्प्ड इन अ वेरी बिग वे। बिल्कुल। तो वो समय वैसा था। बहुत कम कॉम्पिटिटर्स वर फ्रेंड्स वी यूज्ड टू मीट बहुत कम होता था। हमारे ख्याल से माइल्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बोरिंगर होता था। द अर्स्टवाइल बोरिंगर जो अब रॉश हो गया है। तो वहाँ पे अब जैसी वॉर था मगर प्यारा वॉर था। और अब इट इज़ कट थ्रोट सो यस योर बिज़नेस सेपरेट। द प्राइसेस हैज़ बीन स्टेडीली फॉलिंग। ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि अब बाकी सब हर लाइन में प्राइसेस ऊपर ही जाता है। नया आईफ़ोन आता है तो महँगा होता है। मगर अब हमारा लाइन है कि जब नया चीज़ आता है तो सस्ता आता है। बिल्कुल, हाँ। सो मैंने प्रोडक्ट का कॉस्ट पिछले 35 साल में सिर्फ कम होते देखा है, ऊपर जाते नहीं देखा है, व्हिच इज़ वेरी यूनिक। जो लोग इस लाइन के नहीं हैं, वो लोग ये शायद समझ नहीं। समझ ही नहीं पाएँगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑटोमेशन के बारे में आपका क्या कहना है? जब आप यानी मेबी 15-20 इयर्स बैक फ्रॉम टुडे एंड आज का जो ऑटोमेशन हुआ है इंडस्ट्री में, उसमें क्या आप कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। कि आपको अगर एक पर्सपेक्टिव के लिए बताऊँ कंपैरिज़न के लिए, हाँ, जब हमने माइल्स थोड़े साल बाद बायर डायग्नोस्टिक हो गया, रियलाइज़ इट वाज़ टेकन ओवर बाय बायर। सो बायर में हमने जब 3 पार्ट हेमेटोलॉजी लॉन्च किया था, तो मेरे ख्याल से पूरे साल का इन ऑल इंडिया टारगेट था 10 यूनिट का। ओह! इतना छोटा मार्केट था। आज तो शायद एक ओरेटलाइन सेल्स पर्सन का 6 महीने का टारगेट होता होगा ये। तो अभी द लेटेस्ट आई थिंक इज़ समवेयर क्लोज टू 10,000 टू 15,000 यूनिट्स अ ईयर। ये मार्केट है इंडिया का। अब आप समझिए कि जब जब यहाँ से यहाँ जब ग्रो किया है, तो क्या ऑटोमेशन बहुत तरीके से बदला है। पहली तो बात नंबर ऑफ लैब्स बट बहुत बढ़ गए बिल्कुल। हैं। एक समय था जब एक लैब कैलोरीमीटर से चालू करता था अपना लेबोरेटरी, राइट? यू आर आल्सो देयर उस समय फ्रंट लॉ पीएल एम्बर्स लॉ हमको दिखाया जाता था। उसके बाद आया सेमी ऑटोमेटेड और छोटे सेमी ऑटोमेटेड आए। बड़े कस्टमर्स जिनके पास पैसे थे वो माइल्स और बोरिंगर लेते थे। उसके बाद आया यू नो द द द हिटाचीज़ केम इन, या द बिगर कस्टमर्स स्टार्टेड बाइंग द स्मॉलर जो बहुत बड़े एनालाइज़र्स थे। भले वो 200 टेस्ट के थे मगर बहुत बड़े थे। आज भी लिख के देखेंगे तो अनबिलीवेबल इन द साइज़, राइट? सो वो हुआ। धीरे-धीरे नाउ इट इज़ ऑटोमेशन केम इनटू ऑल अदर लाइन्स, वेदर इट इज़ हेमेटोलॉजी, वेदर इट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, वेदर यूरिन एनालिसिस, एवरीथिंग इज़ ऑन ऑटोमेशन। तो कैपेबिलिटी बढ़ा। बिल्कुल, ओके ऑटोमेशन बढ़ा इन द सेंस ऑफ स्पेशलिटी। बिल्कुल, ओके और अब लेटेस्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन, बिल्कुल। राइट? सो नाउ द ट्रेंड इज मोर ऑफ इंटीग्रेशन जहाँ पे कस्टमर्स ये नहीं चाहते कि हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखें, एक इंस्ट्रूमेंट रख के इंटीग्रेट करें एंड देन हम लोग करें। सो नाउ द ट्रेंड इज मोर ऑफ इंटीग्रेशन एंड नाउ द कंपनीज आर इस कंपटीशन में है कि छोटे इंटीग्रेशन के क्यों हैं, ओके, बिकॉज इंडिया अभी भी मिडिल क्लास से भरा हुआ है। सो हम लोग टॉप एंड नहीं देखेंगे। सो मिडिल मिडिल लेवल इंटीग्रेशन इज व्हाट विल टेक दिस फॉरवर्ड स्पेसिफिकली फॉर बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी। ओके। या एक कांसेप्ट आया था और शायद आज भी है, रीएजेंट रेंटल प्लेसमेंट्स। तो ये रीएजेंट रेंटल वेदर इट इज़ a benefit to the industry or loss to the companies? वेल इट्स अ डबल एज सोर्ड एक्चुअली। Double edged, सो correct. so it's how you play the game. You play the game well, it is win-win. Don't play the well, it won't be a good proposition because here you are talking about investment of tens of lakh rupees to be Correct. done upfront, and
सबसे बड़ी बात जो मैं करता हूँ रीडिंग जेंटल में, दैट इज़ ड्यू डिलिजेंस, राइट? ड्यू डिलिजेंस इज आपने मोस्ट जितना समय उसमें बिताया ड्यू डिलिजेंस पे, जितना ज़्यादा चाहिए तो 1 2 हफ्ता और लीजिए, 1 महीना और लीजिए, और जितना अच्छा ड्यू डिलिजेंस किया, आपका चांसेस ऑफ सक्सेस इज़ हाई, ओके बैक। राइट? कई लोग तो ये लोगों को व्यूअर्स को सीखने जैसा है। दरअसल इट इज़ ड्यू डिलिजेंस के लिए क्या होता है, उस समय सेल्स के प्रोसेस में ऐसा होता है कि सेल्स पर्सन इतनी जल्दबाजी में होता है कि वो ऑर्डर कैसे भी मिल जाए, या विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस की उसकी छानबीन कर ले, गहराई में छानबीन कर ले, कस्टमर का वर्कलोड सचमुच वो है कि नहीं, एज ए पे मास्टर वो कैसा आदमी है, एज एन इंस्टीट्यूशन कितनी ग्रो कर रहा है, कितना डी ग्रो कर रहा है, उसके पास और दूसरे इंस्टॉलेशन से सेम काइंड के इंस्ट्रूमेंट के होंगे, तो वो समझ ही नहीं पाता और सेल्स पर्सन वहीं मार खा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्यू डिलिजेंस करना, या छानबीन एंड करना, राइट? yeah, and as I say, putting an instrument on reagent rental is like taking a car loan, या right? So if I approach HDFC जहाँ पे मेरा सब कुछ पैसा है, बट स्टिल अगर मेरे को कार लोन लेना है तो HDFC मेरे को सिर्फ पूरा पूरा का पूरा जन्म कुंडली देखिएगा। right? यहाँ पे हम लोग कई लोग मिस कर जाते हैं, दे गेट स्कैर्ड ऑफ आस्किंग द कस्टमर कि आपके वर्कलोड का प्रूफ क्या है, या एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक मेजर ड्रॉबैक और शॉर्टफॉल हैपेंस, कि लोग ये नहीं पूछते हैं कि सर आप अगर बोल रहे हो कि मेरा इतना वर्कलोड है तो इसका प्रूफ दिखाइए। प्रूफ बिल्कुल ऑफ कोर्स मांगने का तरीका तरीका होता है। मगर वो, और वहीं पे एमएनसीज बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ओके उनको एसओपीज आर वेरी स्ट्रिक्ट, जो प्रूफ चाहिए तो चाहिए, सो देयर इज नथिंग, एंड नो कस्टमर शुड हैव एनी हेजिटेंसी और ऑब्जेक्शन इन गिविंग द प्रूफ ऑफ द वर्कलोड। बिल्कुल बिल्कुल। हालाँकि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो अगर सर्विस को डिफ़ाइन करना हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो किस तरीके से किया जा सकता है? So talking about the service as a division, सर्विस नॉट एज़ अ डिवीज़न ऑल्सो, सर्विस टू द कस्टमर, सर्विस टू द फ स्टैंड अलोन लैबोरेटरी ओनर्स, पोस्ट इंस्टॉलेशन सर्विस के अलावा और बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। कंज्यूमेबल्स की सर्विस है, मेबी कोई किट प्रॉब्लम में आ गई तो उसमें सर्विस देना कि हाउ डू यू लुक एट द सर्विस पार्ट ऑफ इन द इंडस्ट्री? Whereas in totality we are into services only. Correct. IVD diagnostics is still service. और मैं जो उसको थोड़ा ब्रॉडन करूंगा कि अगर आप सेल्स भी की बात करेंगे तो सेल्स इज बेसिकली सर्विस, राइट? Yes. सेल्स इज नॉट अबाउट कि मैं आया और मुझे कुछ बेचना है। अब वो अप्रोच जब होने लगे तो कस्टमर्स जनरली डिफेंसिव हो जाते हैं कि भाई ये मेरे जेब में से कुछ पैसा निकालना है। नाउ व्हेन यू एक्चुअली प्रेजेंट द प्रोडक्ट, यू आर एक्चुअली गिविंग हिम अ सॉल्यूशन, तो जो एक तरीके का सर्विस ही हो गया उसके लिए कि भाई ये आपका आज के दिन इशू है, मेरे पास कुछ ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको हेल्प करता है, व्हिच इज अ पार्ट ऑफ सर्विस। Diagnostics में solution itself is a big service. इट्स द बिग सर्विस, इट एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। Yeah. एंड आप कई बार देखेंगे हमारे पहले नेशनल सेल्स मैनेजर्स बोला करते थे कि जब सिचुएशन ये आए कि कस्टमर ये ना सोचे कि मैं ये प्रोडक्ट लूँ या ये प्रोडक्ट लूँ, वहाँ से चेंज करके वो ये सोचे कि मैं इससे लूँ या उससे लूँ, तब आपका सेल्स स्ट्रांग हो जाता है, बिल्कुल चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज वो आपको एज ए पर्सन देख रहा है, नॉट योर प्रोडक्ट, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्विस बिकॉज ही रिलाइज ऑन यू, ही हैज़ आपके ऊपर भरोसा है उसके ऊपर, भाई इसे लूँगा तो मेरा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। बिल्कुल। So services, I would say it's a ongoing process. Yeah. Okay, और जो जो हमारी फील्ड है कलेक्टिवली अगर आप देखेंगे कंपेयर टू लेट अस से फार्मा बहुत छोटी है, नंबर ऑफ लैब्स। और नई भी है, फार्मा तो कम से कम 250 साल पुरानी इंडस्ट्री है, फिर whereas डायग्नोस्टिक्स 50-65 साल के बीच में होगी। एग्जैक्टली, सो उसके कंपैरिजन ही नहीं है, तो हाँ। अभी भी ऐसा है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स लिमिटेड है और यही इनका रिलेशंस, इनके साथ रिलेशंस ही सेल्स वाले का पूंजी है। बिल्कुल। इफ ही मेक्स दिस वेल, वो कहीं भी हो, किसी भी ओहदे में हो, किसी भी कंपनी में हो, जी हाँ। वो एसोसिएटेड रहेगा उस कस्टमर से। एंड दैट इज व्हाट एनी सेल्स पर्सन शुड लुक एट कि ये मैं कैसे हो जाऊँ। मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई आंध्र प्रदेश का मैनेजर है, ही इज बेसिकली द सीईओ ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट? Yes. ही नोज एवरीथिंग अबाउट एपी एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई ओनली नो हाउ टू मैनेज इट, Yes. राइट? ही नोज एवरीथिंग बेटर। सो वो सिचुएशन, और कई बार आपने देखा होगा कंपनी बोलती है, आपने सुना होगा कि ये कंपनी पंजाब में स्ट्रांग है। हाँ। एक्चुअली कंपनी स्ट्रांग नहीं है, वहाँ का पर्सन। बंदा स्ट्रांग है। हाँ, बंदा स्ट्रॉन्ग है, There is a बिल्कुल। person who is strong, and वो इस सब एक्टिविटी से ही होता है।
जी इफ ही हैज रॉन्ग प्रैक्टिसेस और इफ ही बिलीव्स ओनली इन सेल्स, नहीं तो उस लेवल पे नहीं नहीं पहुंच पाएगा, नहीं राइट? कई लोग, अभी अब 100 लोग अगर चालू करते हैं हम लोग इंडस्ट्री में, मेरे को नहीं लगता उसमें से 50 लोग भी फाइनल तक जाते होंगे। जी हाँ दे फॉल डाउन इन बिटवीन द वे। यस और वो यही वाले लोग हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं ये बात। सर्विस को सही तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं वो लोग हैं जो वो पीछे रह जाते हैं या फेल हो जाते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता था बीच में ही लेकिन थोड़ा आपकी बातों में इतना गुम हो गया कि समझ ही नहीं पाया। आपकी लाइफ में आपकी उपलब्धियां तो बहुत सारी है, एक आध दो उपलब्धियों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को और एक आध दो सेटबैक्स। So setbacks is a very long list. ओह So it keeps happening every day, right? Else, so जैसे हमको पहले कंपनी में सिखाया था कि अगर आप 10 लीड्स में 10 जगह काम कर रहे हैं जहाँ आपको लगता है सेल आ जाएगा, उसमें से 1 या 2 आती हैं, 2 भी नहीं आती हैं। इट्स स्ट्राइक रेट इज नॉट मोर देन 10 to 20% एनीवेयर। नॉट मोर देन 10, आई वुड से। या 8:1 वो कहते थे। तो इसका ये मतलब है कि आपको 1 ऑर्डर मिलेगा तो 7 लूज़ होंगे। तो 7, तो बहुत ऑब्वियस है कि सेटबैक बहुत लंबा लिस्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल फिर किसी पॉडकास्ट में रखेंगे वो। मगर अ, सी सक्सेस की बात है, आई थिंक रिलेटिवली बीइंग लिटिल इन अ वेरी हम्बल वे, अ, इस इंडस्ट्री में इतना साल एग्जिस्ट करना एंड सर्वाइविंग इटसेल्फ, आई थिंक इट्स एन अचीवमेंट ऑफ अ सॉर्ट देन। सो आई थिंक इट वाज प्रीटी सैटिस्फाइंग, नो उस तरीके से इंडिविजुअल अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स, अ पर्सन जो इस लेवल पे आएगा, ठीक है, ही विल गेट ऑन द वे, दैट इज ओके। बिल्कुल बिल्कुल आपको रोश में भी एक अवार्ड मिला था बहुत पुराना ये मैंने सुना था और मैंने हमारी टीम ने उसका पता भी लगाया और मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। Yeah. Okay. So that was in 2008. That was my annual conference in Rush. यस वो समय था जब मैं एक्टिव सेल्स में था। हर दिन एक किक मिलता था जब एक सेल कर देते थे। बिल्कुल बिल्कुल जहाँ इंटॉक्सिकेशन का मतलब कुछ और पैसा था। So those Days. great days, and yes, I enjoyed my days. Whether even it was prior to this, yes, उस ज़माने की फ़ोटोग्राफ है जब फिर भी डिजिटल कैमरा आ गए थे। उसके पहले के वी आर इन अ टाइम ऑफ यस यस almost black and white, so we don't have a lot of photographs of करेक्ट करेक्ट Miles Bayer. But yes, applauds did come over the way, but I would say you have to have that to survive and to grow. बिल्कुल सही बात है। अब मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक और आखिरी सवाल हमारे दर्शकों को यंगर जनरेशन को एक बढ़िया सा संदेश दे दीजिए कि उन्हें इस इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए आइदर एज ए बिजनेसमैन और जॉब कंटिन्यू रखने के लिए लंबी सीरीज खेलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Okay, so the fundas are very simple, जो मैं कहूँगा, अगर सेल्स लाइन की बात करें, you should first of all you should love to travel, you should love to meet people, that should come from within. मेरे को क्या भी हेल्प करता है द फैक्ट दैट आई एम ए बिग फूडी, सो आई लव सो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है टू गो, यार, टू गो अराउंड। So that's beside the point. But then you have to love. If you अगर आपको सेल्स में रहना है, you have to love traveling. You have to love meeting people. You have to genuinely love meeting people. Yes. Because आदमी को, सामने वाले को समझ जाता है कि जब आप जेन्युइन हो कि नहीं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल There are communications that you send, there are signals that you send, जिसको समझ जाता है. So you have to be genuinely interested in the person and उसको क्या चाहिए. I have talked about this, but integrity is hugely important in sales line, because you're playing with, in a way, you're playing with money, right? You're having a lot of power to use or misuse it. Have a lot of integrity is what I would say in this line. Keep yourself a lot of uh, increase in knowledge. हमारे लाइन में नॉलेज बहुत ज़रूरी है, एंड आई से दिस फॉर पीपल हु आर यंगस्टर्स, दोज हु आर हैविंग द फर्स्ट 10 years, लर्न अ लॉट, बिकॉज इस यही समय आपको लर्न करने के लिए, इसके बाद आप मैनेजरियल रोल में चले जाते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट लर्न अ लॉट, बिकॉज आवर लाइन इज अ लिटिल टेक्निकल लाइन. So use a lot of your time in learning. और आजकल तो मैनेजमेंट के lot of other fundas have come in, where they say that you should put 5% of your earnings in self development. Yeah. You should not wait for the company
to come and train you or say कि come in and train me. You should develop yourself. Self development is the in thing today. Do it to stay relevant. Yes, and I'm sure you'll all make it. हाँ, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आज के हमारे जो मेहमान थे परिमल भटनागर, उन्होंने अपनी जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। उनका बचपना कैसे गया, उन्होंने करियर कहाँ से स्टार्ट किया, क्या-क्या उन्होंने किया, किन-किन शहरों में वो रहे, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, ट्रैवलिंग के बारे में बताया, नॉलेज के बारे में बताया और इसके अलावा हमें बताया कि सेल्स में हमें क्या नहीं करना चाहिए और उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सीख मैं लेकर के जा रहा हूँ, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। अगर हम अपने आप के साथ सिंसियर रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारे कस्टमर्स के साथ भी सिंसियर होंगे, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके साथ भी सिंसियर होंगे। तो सिंसियरिटी पेस इन लॉन्ग टर्म इन वेरी बिग वे। सो थैंक यू वेरी मच परिमल जी, आप आज हमारे इस पॉडकास्ट में आए, हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए बहुत अच्छा समय था। हमारी दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा इसी प्रकार से आएँगे। Pleasure meeting you. और अब समय है, इट्स टाइम टू यू नो परिमल जी, आप यहाँ पर आए, हमारे से साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सो इट इज़ द टाइम टू मेक अ डिवाइस कोलैबोरेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम विद अस। Thank you. थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you. उम्मीद करते हैं दोबारा आएँगे। Thank you. थैंक यू वेरी मच।